سب لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور جو بھی ہمارے بھائی اس وقت آبادی کے لحاظ سے گجر 30 کروڑ ہے، اور 30 کروڑ گجر ہندوستان میں آباد ہے، اور کچھ میرے بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گجر نہیں ہے اور صرف ہم ہی ہیں، اور وہ اگر ان کو چاہیے کہ گجروں کی آبادی کتنی ہے تو وہ رام لیلا میدان میں آئیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کتنے گجر رہتے ہیں۔ اور اس وقت ایک نیا پروپگنڈا جو کچھ ہمارے لوگوں نے یہاں پر چالو کیا ہے، وہ غلام علی کھٹانہ صاحب جو میرے بھائی ہیں، وہ پارلیمنٹ ممبر بنے، اور میں مودی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، امت شاہ جی کا، رویندر رینا جی کا، مگر ان سے ایک بات میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی سازش ہے، اور سازش کے تحت اس آواز کو بلند کیا گیا ہے گجر اور بکروال کے درمیان میں۔ اور پہلے بھی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، گجر اور بکروال ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے بھی۔ اور یہ آج جو پروپگنڈا ہوا ہے، یہ کچھ پارٹیوں کی وجہ سے پروپگنڈا ہوا ہے۔ اگر یہ اتنے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کچھ این سی کے ہیں، کچھ پی ڈی پی کے ہیں، کچھ دوسرے ہیں، اور رویندر رینا جی کے سامنے جا کر گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمیں 5% الگ دیا جائے، اور ہمارے گجر بھائی، ہم نہیں کہتے ہیں کہ گجر اور بکروال ایک ہے، اور ہم ان کے لیے یہ سب کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ پنگا اٹھایا، یہ پنگا آپ نے اپنی صحت کے لیے غلط اٹھایا ہے۔ کیوں کہ ہندوستان گورنمنٹ اس وقت سب چیز جانتی ہے کہ کون بی جے پی کے ساتھ ہے، کون ادر پارٹیوں کے ساتھ ہے، اور اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے جو گجر اور بکروال کے بیچ میں دوبارہ یہ پنگا اٹھایا۔ میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے بہت اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کو واپس لیں۔ اگر غلام علی کھٹانہ صاحب انجینئر ہے، وہ ایک کوالیفائی آدمی ہے، اگر کسی نے اس کا انتخاب کیا ہے، اگر پارلیمنٹ ممبر بننے کے لیے، اور اس قابل بنے وہ انسان کہ جو اس کے خلافت کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو۔ غلام علی کھٹانہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بعد میں بات یہ ہے کہ میں رویندر رینا جی سے، میں امت شاہ جی سے، میں مودی جی سے بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے لیے اور ایسے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر امن کا ملک ہے، ہندوستان امن کا ملک ہے، اگر اس میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ایسے پروپگنڈے یہاں چلے گئے تو یا خانہ جنگی کی طرف یہ ہماری ریاست بڑھ جائے گی۔ اس لیے میں سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنی جگہ جہاں پر ہے وہاں بیٹھیں، لوگوں کو اکسائے پر، پولیٹیکل لائن پر نہ چلیں۔ اگر کسی کو زیادہ ہی اتنی بڑی بات ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، بی جے پی کو 15 سیٹیں یہاں سے نکال کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں این سی اور باقی ادر پارٹیوں کے لوگوں نے اس وقت یہ ایک سازش کھڑی کی کہ گجر اور بکروال کو آپس میں لڑائیں، اور بیوقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کے خلاف بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر 10% ہمیں ملا ہوا ہے، 10% کے بیچ میں اگر میجارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو میجارٹی کے حساب سے دیکھ لیا جائے، 10% کس سے بانٹ کے لوگے آپ؟ اگر میری تعلیم میٹرک پاس نہیں ہے تو مجھے ایس ٹی کا کون سا شیڈول مجھے ملے گا؟ مجھے کسی چیز کا کیا ملے گا؟ ایس ٹی کے اندر اگر کسی بھی چیز کو جو مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ گجر اور بکروال کو ملا ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کیٹیگری کے حساب سے دیکھیں گے، میجارٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو 30 کروڑ گجر ہندوستان کی ریاست اسٹیٹوں میں رہ رہا ہے، اور گجر کے ساتھ بکروال بھی ہے، گجر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے 6 منتری جو ہیں، 6 منتری جو اس وقت دلی کی کیبنٹ میں گجر ہیں، جو ایس ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی رہتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فسادات، یہ انتشار نہ پھیلائیں، کیونکہ اس انتشار پھیلانے سے اگلے لوگ سب پہ ہم پہ حاوی ہوں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ایس ٹی کے چکر سے دور رہیں،
ST मिली हुई है। और आप हिंदुस्तान के अंदर आज गुज्जर और बकरवाल एक था, आज बकरवाल भाई हमारे अलग कह रहे हैं कि गुज्जर हमारे नहीं है, हम सिर्फ बकरवाल है। पहले वो हमें ये चीज बताएंगे कि मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, कि वो अगर इस बात को मुझे तशरीह करके बताएं कि गुज्जर से बकरवाल है, और बकरवाल तब बना है जब गुज्जर था, और गुज्जर ने भैंस रखी, बकरवाल ने बकरी रखी, लास्ट में सब कुछ एक है। इसलिए ये प्रोपगंडे जो पार्टियों के हैं, ये वोट बटोरने के काम है, ये लोगों को तोड़ने के काम है। मैं रविंद्र रैना जी से भी अपील करूंगा, मैं अमित शाह साहब से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों फसादातियों की एक निशानदेही की जाए कि इनके अंदर ये इंतशार और ये हवा फैलाने वाले कौन लोग हैं, ये मुल्क को, रियासत को, स्टेट को बांटने वाले कौन लोग हैं। कोई दफा 370 की बात कर रहा है, कोई 35A की बात कर रहा है, कोई ST की बांटने की बात कर रहा है, कोई कौमियत को बांटने की बात कर रहा है, कोई हमारे नौजवानों में इंतशार फैला रहा है। क्या है इसमें, कौन सा नतीजा आ रहा है? और मैं ये कहना चाहूंगा हर इंसान की, गुज्जर और पहाड़ी की और गुज्जर और बकरवाल की, इनकी पूरे की वेरिफिकेशन की जाए कि क्या इनके अंदर कौन आदमी है, कितने आदमी पाकिस्तान नवाज थे और कितने आदमी हिंदुस्तान नवाज हैं। ये इसमें फैसला किया जाएगा। और उसके अंदर हमारे घरों में हमारी एक ही कब्रें हैं, हमारी एक ही ईमान है, एक ही भाईचारा है, हम इसको खराब करना नहीं चाहते हैं। मैं अपील करता हूँ फिर भी उन भाइयों से कि जो भाई इस वक्त आकर एक अलग प्रोपगंडा वहां पर तैयार कर रहा है, गुज्जर पहाड़ी, गुज्जर कश्मीरी, गुज्जर बकरवाल गुज्जर के साथ है, गुज्जर था तो तब बकरवाल है। एक गुलाम अली खटाना के नाम से क्यों इस वक्त इंतशार फैला रहे? अगर उसमें काबिलियत थी, वो उस काबिल था, वो एक MP बना। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को, मैं मुबारकबाद देता हूँ अमित शाह जी साहब को, मैं रविंद्र रैना जी को, मैं अपनी बाकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि गुलाम अली खटाना को बनाया। गुलाम अली खटाना एक उस काबिल इंसान था, उस काबिल बनने वाला था, MP बनने वाला था। कल हो सकता है कि BJP की हुकूमत आए, वो उसको कुछ और भी दे सकती है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और गुलाम अली खटाना के साथ मैं खड़ा हूँ। क्यों कि गुलाम अली खटाना एक ऐसा संजीदा इंसान है कि जिस इंसान को बनाया है, मैं इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उस गवर्नमेंट का, उस अपने LG का, अपने इसका अमित शाह साहब का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने राष्ट्रपति जी का, जिसने उनका नाम किया है। और इस वक्त गुलाम अली खटाना के नाम से सब आदमियों को करंट लग गया, करंट दौड़ रहा है बदन में कि गुलाम अली खटाना क्यों बन गया। आज मैं ST अलग करूं तो मैं भी MP बनूं। पहले मुझे MP बनने के काबिल बनना है, पहले मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, पहले मुझे उस काबिल डिग्री हासिल करनी है। और गुलाम अली खटाना के पास डिग्री है, तब भी जब उसको किसी ने चुना है, तभी मैं ये कहता हूँ, इस वक्त सब भाइयों को कहता हूँ, आप अपनी जगह बैठें, आराम करें। और ये ज्यादा मांगने वाला थोड़े से भी चला जाता है। जो पेट भर के ज्यादा खाना खाता है ना, पेट में दर्द होता है, पेट दुखता है। इसको पेट की बीमारी से दूर रहो और अच्छे तरीके ये सियासत मत चलाओ, वोट की सियासत मत करो, पार्टियों की सियासत मत करो। कौन PDP के साथ है, कौन NC के साथ है, कौन अदर पार्टियों के साथ है, वो आप अपना काम करें। हम किसी को नहीं कहते आप किस पार्टी को वोट दो, किसको न दो, मगर जहां पर ये बात फितना उठाया, ये फसाद उठाया, ये हमारे बच्चों में हमारे रिश्ते हैं, हमारी कौमियत एक है, हम अपनी कौमियत के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। गुजर भी हमारे, बकरवाल भी हमारे, पहाड़ी भी हमारे। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास कुछ है तो वो सबको दे दे भाई, हम उसके किसी के खिलाफ नहीं है। मगर जो कौम के अंदर ये आवाज उठाई कि एक मेरा भाई आवाज गाकर, गाना गाने से कुछ नहीं होता है, मोजरा करने से कुछ नहीं होता है। स्टेजों पे मोजरा करके गाना गा के कि हमें गुज्जर हमारा कोई नहीं है। अरे गुज्जर हैं तो बकरवाल है, गुज्जर नहीं है तो बकरवाल कहां से आएंगे भाई? हम ये कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, ये गाना गाने वाले
अनपढ़ लोग हैं जिनको कोई पता दुनिया का नहीं है, सिर्फ गाना गाते हैं, अनपढ़ों को उकसाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, फसादात उठाते हैं। पहले मुश्किल से हमने यहाँ के इस वक्त अगर देखें हिंदुस्तान के पास इस वक्त कश्मीर है वो सिर्फ गुजरों के बलबूते पर है। किन गुजरों ने कुर्बानी दी है? सब गुजर इस वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे खून बहे हैं। हम लोगों ने इस वक्त हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। वो चाहे क्यों गवर्नमेंट उस वक्त हमारी इंक्वायरी करे कि हमने यहाँ पर गुजरों ने लड़ा है। कश्मीर में इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ गुजर लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? कुछ आदमी ने सामने आकर इस वक्त बात की है। कोई भी आदमी नहीं है कि हर आदमी को अपने हाथ पाले में रखता है। वो गुजर कौम एक है जो हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान के साथ खड़ी रहेगी। बाकी कोई भी कौम हिंदुस्तान का साथ नहीं देगी। ये मैं वसूख से कहता हूँ। रविंदर रैना जी से भी पहले उसको देख ले, सर्च करके। बाकी एसटी रही कुछ भी रहा, मैं इस वक्त मैट्रिक पास हूँ या मैट्रिक पास नहीं हूँ, अंडर मैट्रिक हूँ। मुझे एसटी का क्या मिलेगा? मैं घर में जाकर भैंसे चरा रहा हूँ, मैं बकरियां चरा रहा हूँ, भेड़ चरा रहा हूँ। मैं आज एसटी के लिए जाकर एक गुलाम अली खटाना इंजीनियर बन गया, पार्लियामेंट मेंबर। मुझे इतना दुख हो रहा है। पहले मुझे इंजीनियर बनना है, पहले मुझे उसके काबिल बनना है, तब जाकर मेरी वहां पर कुछ ना कुछ मेरा वैलेट बनेगा और सरकार मेरे बारे में सोचेगी। मैं रविंदर रैना जी को और बाकी जितने भी हमारी पार्टी है, हमारे जितने लोग हैं, हम एलजी साहब हैं, हमारे अमित शाह साहब हैं, हमारे मोदी जी हैं, हम जो भी कहना चाहेंगे, हर आदमी को हक देना, हर आदमी का साथ और विकास जो कहते हो उसको सुनकर लोग पागल हो गए हैं कि हम साथ और विकार। अरे भाई से अलग हो रहा है, बीवी खामद से अलग हो रही है, बहन भाई से अलग हो रहा है। ये कौन सा भैया तमाशा इन्होंने मचा के रखा है? ये कौन सी सियासत है यहाँ पर कि कश्मीर के हिंदू लोगों को बांटने की, कश्मीर के अवाम को बांटने की, भाई को भाई से बांटने की? मैं ये कहता हूँ, मैं उनको वार्निंग देता हूँ कि अगर किसी ने मेजॉरिटी दिखानी है तो रामलीला मैदान में दिखाए, मेरे साथ आए, मैं देखता हूँ किसकी मेजॉरिटी कितनी है और कितने आदमी कहां से कहां है। मेरे पास हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री का सबका मताला रखता हूं। मगर मैं ये कहना नहीं चाहता था। आज मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि दो लड़के काली पगड़ियां बांधकर रविंदर रैना साहब के सामने नाच रहे थे। गुजर हमारा कुछ नहीं है, हम बकरवाल हैं। तू अरे गुजर था तो बकरवाल बना है। अगर गुजर ना होता तो बकरवाल कहां से आता? आज तक तुम गाना गाते थे गुजर और बकरवाल एक है। आज किस आदमी ने आपको उंगली लगाई? क्या पाकिस्तान की आईएसआई ने लगा दी? क्या किसी और ने लगा दी कि गुजर और पहाड़ी को बांटो, इनके कत्लेआम करवाओ, गुजर और बकरवाल को बांटो? ये किस आदमी ने इनको ये तमीज सिखाई है? इसलिए मैं सब भाइयों को कहना चाहूंगा कि इस बात से बाज आओ, गुज्जर और बकरवाल को मत बांटो। हमारे रिश्ते हैं, हमारे खून हैं, हमारे एक हैं, हम भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ और सब को मैं जो भी आपको कहना है मुझे अकेले को कह दो, सब गुजरों को मत बोलो। क्योंकि गुजर इस वक्त 30 करोड़ गुजर हिंदुस्तान के अंदर रहता है, जो रविंदर रैना जी बखूबी जानते हैं। और एक गुजर को यहाँ कांटा चुभता है तो हिंदुस्तान की 14 स्टेटों से गुजर खड़े होते हैं। मैं बताता हूं, कुछ मेरे भाई कहते हैं हमारी मेजॉरिटी इतनी है, वो मेजॉरिटी बताए। हिंदुस्तान से एक आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर किसी को खड़ा होना है, मुझे 100 आदमी रामलीला मैदान में कश्मीर के बगैर खड़ा करके दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा और उसका जिंदगी में गुलाम रहूंगा। या एक गुजर वहां खड़ा होगा जिस गुजर का बिल्कुल छोटे से छोटा गुजर, उसकी एक आवाज पर 10,000 गुजर खड़ा होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे खड़ा होगा। इसलिए मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल शांति करो और इस बात को बांटो मत, क्योंकि आपको नुकसान होगा। क्योंकि एसटी ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी। हर रोज एसटी कोई पेड़ के साथ, दरख्त के साथ कोई अखरोट नहीं लगे हैं, एक टोकरी बार के उसको दे देंगे, एक उसको दे देंगे। मोदी साहब के पास कितनी एसटी है मुझे ये बताए? वो किस किस को एसटी देगा? अभी जो डोगरे भी खड़े होंगे, अभी दूसरे भी खड़े होंगे। आज यार एसटी का मसला है, भाई से भाई अलग हो रहा है, ये कौन सा तरीका है? इसकी जांच करो, इसके पीछे किसका हाथ है। जय हिंद, जय भारत।